And welcome to the next video of probability. Today we will be doing exercise 15.1. Let's talk about the first question. It says the probability of an event plus the probability of event not E, matlab P of E plus P of E bar. That is what they have asked us. So this is complementary, right children? So it is 1. So the answer for the first one is 1. The probability of an event that cannot happen is, cannot happen means वो impossible event है, तो is 0. Such an event is called impossible event. The probability of an event that is certain to happen, मतलब जो होना ही होना है उसकी probability is 1, and such an event is called sure event or certain event. The sum of probabilities of all elementary events means जिसमें single sample point होता है, last video को आप refer कर सकते हो. तो the sum of all probabilities of all elementary events for an experiment is 1. The probability of an event is always greater than equal to 0 and less than equal to 1. I told you negative नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती. So this is all about question number 1. Let's talk about the second question. Which of the following experiments are equally likely? Equally likely क्या होता है कि किसी event के मतलब जो probability है होने की probability और ना होने की probability same हो. Let's talk about the first question. A driver attempts to start a car. The car starts or it does not start. See, possibility तो दो ही हैं कि कार start होगी या नहीं होगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके पास कार बहुत अच्छी है तो वो हमेशा स्टार्ट होती हो, या आपकी कार अगर ख़राब हो गई है तो वो स्टार्ट हो ही ना. सो दिस विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स, राइट चिल्ड्रन. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट इक्वली लाइकली. अगला देखते हैं. अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल. शी और ही आइदर शूट्स इट और मिसेस द शॉट. तो क्या हो सकता है, इफ़ यू आर अ वेरी गुड बास्केटबॉल प्लेयर वर्सेस मी, मुझे तो बास्केटबॉल खेलना ही नहीं आता, तो मेरा तो कभी भी शॉट नहीं लगेगा और आपका हमेशा लगेगा, राइट. सो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वली लाइकली, राइट. A trial is made to answer a true or false question. The answer is either right or wrong. अब ये correct है, या तो answer right होगा, अगर वो right नहीं है तो wrong होगा. So this is equally likely outcomes. So this is correct. A baby is born, either it is a boy or a girl. Again, this is equally likely. There are only two ways and it won't depend upon conditions, right children? So these are also equally likely statement. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game, or same way as a cricket game? कि कौन बैटिंग करने, जो कैप्टन है वो मांगता है कि बैटिंग चाहिए या बॉलिंग चाहिए, तो कॉइन टॉस होता है. ऐसे ही फुटबॉल में भी अगर कॉइन टॉस होने की सिर्फ और सिर्फ दो प्रोबेबिलिटी है, हेड और टेल. तो सपोज करिए मैंने हेड मांगा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 आएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 आएगी, मतलब हारने और जीतने की सेम प्रोबेबिलिटी है. सो यस, इट इज़ अ, since both the events are equally likely, so it is a fair way to judge it. Let's talk about the third question. Which of the following cannot be the probability of an event? चेक करो. -1.5, तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती. 15%, ये तो हो सकता है. 15% मीन्स 15/100, सो 1 से लेस, तो इट इज़ ट्रू. 2/3 इज ऑल्सो लेस, राइट. सो 2/3 भी हो सकती है. 0.7 तो है ही 1 से लेस, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. Let me just question number 5. What is the, if P of E is this, what is P of E naught? Again हमने P of E naught क्या होता है, 1 minus P of E, तो हम निकाल ही लेंगे. This is 1 minus 0.05, so answer is 0.95. So that is the probability of not happening of an event. Now a bag contains lemon flavored candies only. एक बैग में सिर्फ lemon flavored candies है. So हम ले लेते हैं, let bag has X lemon candies. Malini takes out one candy without looking into bag. What is the probability it is an orange flavored candy?
सो पहला पार्ट हम जो कर रहे हैं उसमें ई क्या है, जो कैंडी है दैट इज ऑरेंज फ्लेवर्ड, ऑरेंज कैंडी। अब बैग में तो ऑरेंज कैंडी है ही नहीं, फेवरेबल आउटकम्स आर जीरो एंड टोटल आउटकम्स आर एक्स, so answer is 0 for the first case, that is it is a impossible event. Let's talk about the second part now. Second part के लिए E क्या हमने define किया है, it is a lemon flavored candy. So lemon candy favorable outcomes, फॉर्मूला आपको, फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझाई चुकी हूँ। favorable outcomes upon total outcomes. सो लेमन कैंडी कितनी है x और टोटल कितनी है x, सो x और x कैंसिल आउट हो गया, 1 आया, तो इट इज़ अ श्योर इवेंट। मतलब अगर मैं कैंडी वाले बैग से कैंडी निकालूंगी तो श्योर है कि वो लेमन फ्लेवर कैंडी आनी ही आनी है। लेट्स टॉक अबाउट द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है कि it is given that in group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is this. So what is the probability that the two have the same birthdays? So E क्या है, suppose E है two students not having same birthday, right? So E complement क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा two students having, मतलब having same birthday negate कर दो जो इवेंट गिवन है, राइट? सो ऑब्वियसली हमें ये लॉ पता ही है, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 होता है, तो P ऑफ E बार क्या आ जाएगा, इट विल बी 1 माइनस P ऑफ E, दैट इज 1 माइनस 0.992, सो आंसर इज 0.008. So this is the probability that two students have same birthdays, right? क्योंकि दोनों events complementary थे। Next question करते हैं, let me just pick this up and let me erase the board. Question number 8 क्या कहता है, a bag contains 3 red and 5 black balls. A bag is drawn at random. What is the probability? First, it is a red ball. सो P ऑफ E कितने रेड बॉल्स हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन फेवरेबल क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स, राइट? सो आंसर क्या आ गया, 3/8, सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता। सेकेंड केस अगर मुझे करना है, अब इसमें ऑब्वियसली E चेंज हो जाएगा, नॉट रेड, तो या तो आप डायरेक्टली निकाल लो 5/8, नहीं तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो 1 माइनस 3/8, जो पिछले वाला फॉर्मूला है P ऑफ E और P ऑफ E बार, राइट? दैट इज it will be again same 5/8 only, so no matter which way you follow. Question number 9 देखते हैं। Question number 9 क्या कहता है, a bag contains a bag contains 5 red, 8 white and 4 green marbles, right? Again one marble is drawn at random. First E क्या है कि वो रेड मार्बल है, सो P ऑफ E कितना हो जाएगा, रेड कितने मार्बल्स हैं हमारे, फेवरेबल आउटकम्स 5 और टोटल, आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, टोटल क्या है 8 + 4 12 + 5 17, राइट? सो ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड वाइट मार्बल, अगेन अगर E को मैं वाइट ले लूँ, सो वाइट मार्बल ड्रॉ करना यानी कि 8/17, एंड थर्ड पार्ट P ऑफ E, दैट E क्या है इस केस में, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन को छोड़ के, तो 8 + 5, राइट चिल्ड्रन, राइट? दैट इज 13/17, राइट? या 17 में से 4 सबट्रैक्ट कर दो, कैसे भी निकाल सकते हो आप। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स गो फॉरवर्ड and let's do question number 10. Again simple question है, a bank contains 150 पैसा coin,
50 पैसा कॉइन जो है वो हमारे पास कितने, बैंक के पास कितने हैं, पिगी बैंक में सॉरी कितने हैं, 100, राइट। फिर 50 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन कितने हैं, 50। उसके बाद 2 रुपी कॉइन 20 एंड ₹5 कॉइन 10। सो क्वेश्चन क्या कहता है, if it is equally likely that one of the coin will fall out from when the bank is upside down, तो equally likely कि कोई भी एक बाहर ढूंढ निकलेगा। so what is the probability, first E, it is a 50 पैसा coin, so again formula same, P of E, favorable outcome कितने 50 पैसा coin है, 100 upon total, so 100 plus this is 150, 170, 180, राइट। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 5s are 2 9s are, so answer is 5/9, right? Similarly second case, it will not be a 5 rupee coin, not be a 5 rupee coin means आप 180 में से 5 रुपी कॉइन को हटा दो, वो आपके टोटल हो गए, या आप बाकी सारे ऐड कर लो, सो कैसे भी निकाल सकते हैं। सो आंसर विल बी हियर, द आंसर विल बी 17/18. So that is your answer. You can leave your answer in fraction, children. No need to convert it into decimal point, okay? Let's do question number 11. क्या कहता है? Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fishes, 8 female fishes. Again, probability E क्या है? A male fish is taken out. तो मेल कितनी है, 5, टोटल कितनी है, 5 plus 8 13, so answer is 5/13, right? Question number 12. A game of chance consisting of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers. You can see all the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability? First part, E क्या है, 8। अब 8 कितनी बार आ रहा है चेक करो, सिर्फ 1 बार आ रहा है, और टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, टोटल इज 8, so answer is 1/8 for the first one. Let's do the second part, and odd number. Now P of E, E क्या है, odd number. Let me explain you. odd number कौन कौन से होते हैं चेक कर लेते हैं। 1 is a odd number, 3 is a odd number, 5 is a odd number and 7 is a odd number out of all these numbers. So कितने favorable outcomes, 1 2 3 4, 4 favorable outcomes upon total number of outcomes. So answer is half for the second one. Let's talk about the third one. E क्या है, number greater than 2. Number greater than 2 means 3 4 5 6 7 and 8. So P of E इस केस में कितना हो गया, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 favorable outcomes upon total, that is answer will be 3/4. For the fourth part, number less than 9. So less than 9 means obviously सारे ही आ जाएंगे 1 2 3 till 8. So P of E इस केस में क्या हो जाएगा, 8/8. So answer is 1. That means this one is a sure event. All right. Let's talk about question number 13. A dice is thrown once. अगर डाइस को थ्रो किया है तो पहले तो सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं, क्या होगी, 1 2 3 4 5 6. Everyone has played Ludo, right? Find the probability. First part, a prime number, E prime number. So let's find out कि कितने prime numbers होते हैं। इसमें कंफ्यूजन, इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कर देते हैं, दे कंसिडर 1 एज अ प्राइम नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर चिल्ड्रन। प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर विच इज डिवाइडिंग ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1, राइट। सो 2 3 एंड 5, सो कितने प्राइम नंबर्स हैं,
सो आंसर इज 3/6 यानी कि 1/2. सेकेंड, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. तो 2 and 6 के बिटवीन मतलब हम 2 and 6 नहीं ले सकते, यानी कि 3, 4, 5. अगेन पी ऑफ ई कितना आया सेकेंड केस में भी? 3/6. दैट इज अगेन 1/2. And the third part, odd number. Odd number means 1 is a odd number, 3 is a odd number, and 5 is a odd number. So again P of E कितना आया? 3/6. That is again 1/2. प्लीज शॉर्टकट नहीं मारिएगा, डोंट राइट डायरेक्ट आंसर, बिकॉज इसके भी आधे नंबर आपको मिलेंगे. और ऑब्वियसली फॉर्मूला आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑलरेडी, पी ऑफ ई लिखना इंपॉर्टेंट है. दिस ऑल्सो कैरीज हाफ मार्क. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पी ऑफ ई. सो ये चीज़ और सैम्पल स्पेस ज़रूर लिखिएगा दोनों क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में, सो दैट आपको स्टेप मार्किंग भी हो जाए इवन इफ़ योर कंप्लीट आंसर इज़ रॉन्ग. और अगर आपने सिर्फ आंसर लिखा होगा और वो गलत हो गया तो आपको 0 मार्क मिलेगा अगर आपने स्टेप्स नहीं लिखे तो, राइट. 14th question. A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. I hope आपको कार्ड्स याद होंगे. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, रेड एंड ब्लैक. रेड 26, ब्लैक 26. जो रेड कार्ड है अगेन वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, 13-13. एक में क्लब और एक में हार्ट्स, सॉरी डायमंड एंड हार्ट्स, राइट, और दूसरा क्लब एंड स्पेड. So club and spade, club may be 13 and spade may be 13. So this is what is your card structure look like. Before doing the question, we have just quickly revised. Now let's go further and do the question. What is the probability that first part, red king? तो king क्या होता है? Again, king हर जो नंबर होता है वो 1 से लेकर 13 तक नंबर्ड होते हैं सारे कार्ड, जिसमें K, Q और J होता है. J is 11, Q is 12 and K is 13. K is known as the king. So कितने red kings हैं? How many red kings are there, children? 2. और total number of cards कितने हैं? 52. So answer is 1/26 for the first one. For the second one, face cards. P of E. कितने face cards होते हैं? 12 upon total 52. राइट. सो अगेन ये 12 कैसे होते हैं? 3 J Q K इधर, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर. सो दैट इज हाउ देर आर 12 फेस कार्ड्स, राइट चिल्ड्रन. सो इसको अगेन आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3/13 आ जाएगा. लीव इट एज इट इज. लेट्स डू द थर्ड पार्ट, रेड फेस कार्ड्स. अब टोटल 3 फेस कार्ड्स यहाँ, 3 फेस कार्ड्स यहाँ, यानी कि 6 रेड फेस कार्ड्स अपॉन 52. That is your third part. Let's do the fourth part. Jack of hearts. Jack मतलब J, right? So Jack of hearts बोला है तो hearts तो सिर्फ एक ही कार्ड होगा. So answer is 1/52. It cannot be solved further, right? For the fifth part, a spade. P of E. Spade कितने होती हैं? 13 spade upon 52. So that is 1/4. And the sixth part, क्वीन ऑफ डायमंड्स. अगेन क्वीन एक ही होती है डायमंड की. सो 1/52. दैट इज हाउ योर क्वेश्चन इज गोइंग टू लुक लाइक. अगेन ऑब्वियसली आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. दैट्स इट. और तो कुछ सिंप्लीफिकेशन होना नहीं है. दैट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू कार्ड्स. आगे भी क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है, बट वो पूरे डेक से रिलेटेड नहीं है. सो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें सिर्फ 5 कार्ड्स हैं. ओनली 5 कार्ड्स आर देयर विद यू, विच इज 10, J, Q, King and Ace. 10, 11, 12 number card, 13 number card, Ace is 1 numbered card of diamonds. तो ये सारे कार्ड्स हमारे पास किसके हैं? डायमंड के हैं. फर्स्ट, a card is picked up at random. First, what is the probability that the card is a queen? So P of E. कितने queen है इसमें? 1 out of total cards 5. तो इसमें प्लीज चिल्ड्रन
डेक ऑफ कार्ड नहीं लेना क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया है दैट देर आर ओनली 5 कार्ड्स विद यू. सेकेंड क्वेश्चन, इफ अ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, इट इज अ हॉट क्वेश्चन. अब मैंने क्या किया सेकंड वाले पार्ट के लिए, मैंने क्वीन को निकाला और उसको मैंने बाहर रख दिया, यानी कि अब मेरे पास कार्ड्स कितने रह गए, सिर्फ 4. राइट. If a queen is drawn and put aside, what is the probability that second card is a ace? So ace कितना है, कितने aces हैं हमारे पास, सिर्फ 1. राइट. आउट ऑफ टोटल कार्ड कितने रह गए हैं, 4. सो ये तो हो गया सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट. बी पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन. अब ये क्वीन हम ऑलरेडी बाहर रख चुके हैं, मतलब मेरे पास ये 4 कार्ड में क्वीन नहीं है. सो आंसर विल बी 0/4. सो आंसर विल बी 0. Right? I hope you will not do any mistake. It is a higher order thinking skill question, question number 15. इसमें बच्चे ये गलती करते हैं, दे फॉरगेट दिस वर्ड 5 कार्ड्स और वो जनरल पूरा बंच ऑफ कार्ड लेके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. डोंट डू दैट. क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं. 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिस. 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं एंड 132 गुड पेन्स हैं, यानी कि it is not possible to just look at a pen and tell whether it is defective. One pen is taken out from the lot. What is the probability that it is a good pen? तो total favorable कितने good pens हैं, 132. and total outcomes कितनी है, मतलब total pens कितने हुए, total pens हो गए, please add on कर दीजिए. So total pens will be 144. So if you want to solve, it can be 11/12. That is your answer for 16th question. Let's do question number 17. Let me move this. Question number 17 क्या कहता है? First part, a lot of 20 bulbs contain, 20 bulbs के अंदर 4 defective bulb है और बाकी जो बचे हुए हैं यानी कि 16 जो हैं वो क्या है, they are obviously not defective. Right? Not defective is denoted by D bar. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला सिंबल. ओके, आगे चलते हैं. ओके, one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability it is a defective bulb? So P of E, defective कितने हैं, 4 upon total कितने हैं, 20. ओके, so obviously 2/10 यानी कि 1/5 is your answer. For the second part, suppose the bulb drawn in 1 is not defective, मतलब ऊपर जो हमने बल्ब ड्रॉ किया वो नॉन डिफेक्टिव है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब मैंने जो 20 बल्ब में से एक बल्ब बाहर निकाल के रख दिया, यानी कि मेरे पास टोटल बल्ब कितने रह गए, 19. उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, 4, क्योंकि जो बल्ब मेरा आया था वो नॉट डिफेक्टिव है. तो नॉट डिफेक्टिव कितने रह गए, 15 नॉन डिफेक्टिव बल्ब रह गए. दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. Now a bulb is drawn at random from the rest. Find the probability that it is not a defective bulb. कितने not defective bulb है, 15 upon total bulb कितने हैं, 19. So P of E is 15/19. E क्या है, not defective इस केस में. Right? For case number 2, जब हमने एक बल्ब जो कि क्या आया था, इज नॉट डिफेक्टिव, उसे हमने बाहर रख दिया था. राइट? ऑल राइट, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. अगेन 18 नहीं दिखा. 18 question. A box contains 90 disc which are numbered from 1 to 90. तो एक डिस्क है बहुत सारी हमारे बॉक्स के अंदर जिसमें वो 1 to 90 है. One disc drawn at random. Find the probability it bears a 2-digit number. अब देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा रिवर्स में भी कर सकते हैं ताकि जल्दी हो जाए. सो हियर आई विल टेल यू अ टाइम सेविंग ट्रिक. Rather than counting all the 2-digit number, can I say one digit numbers will be from 1 to 9, यानी कि सिर्फ 9 numbers. So 2-digit numbers कितने हो जाएंगे,
90 minus 9, right children? That is 181. So what is the probability that it is a 2-digit number? यानी कि 81 upon total numbers, that is 90. Cancel कर देते हैं, 9 9s are 9 10s are. So answer is 9/10. Second case करते हैं, a perfect square number. Perfect square. अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 1 1. उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होता है? चेक कर लो, वो होता है 4. 3 का स्क्वायर 9. 4 का स्क्वायर 16. 5 का स्क्वायर 25. 6 का स्क्वायर 36. 7 का स्क्वायर 49. 8 का स्क्वायर 64. 9 का स्क्वायर 81. 10 का स्क्वायर 100. लेकिन 100 तो आता नहीं है 90 के बीच में, 1 to 90 के बीच में काउंट करने हैं. तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगेन सेकेंड पार्ट, आंसर इज 9/90 यानी कि 1/10. अगेन इसमें गलती क्या होती है कि बच्चे 1 को काउंट करना भूल जाते हैं. दे डोंट कंसिडर 1 एज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक. थोड़ा सा कॉमन मैथमेटिक्स चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. अ नंबर डिविजिबल बाय 5. अ नंबर डिविजिबल बाय 5. A number divisible, I'm sorry, divisible by 5. चेक करते हैं नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या होंगे. 1 to 90 के बीच में 5 का टेबल, 5 5 1 5, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90. This number divisible by 5. Okay, so it is how many? Please count. It will be 18/90. So obviously again cancel हो जाएगा. 9 1s are 9 2s are. So 1/5 is your answer for the third part. Alright, so this is question till question number 18. आगे चलते हैं. Question number 19, again a very very simple one. बिल्कुल मुश्किल नहीं है. A child has a dice जिसपे उसने ये faces लगा दिए हैं. A dice is thrown, probability of getting A. So P of E, first part. A कितने faces पे चेक कर लो. Favorable outcomes 2 upon total dice के faces 6 यानी कि 1/3. Second case, D आने की probability. So कितने D हैं फेस पे? 1 टोटल अपॉन टोटल यानी कि 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. अगेन इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बस थोड़ा सा सिचुएशनल बेस्ड है. सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन. ठीक है, what is the probability that it will land inside the circle? So probability of event is favorable क्या है? Dice, the dice has to lie in circle, right? Upon total outcomes क्या है? पूरा का पूरा rectangle. Dice in rectangular region. Okay. Now circle का एरिया तो हमें पता ही होता है, right? That is pi r कितना है? diameter 1 मीटर है तो रेडियस 1/2 हो जाएगा, right? एंड सर्कल रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 3 into 2, लेंथ into breadth. So this is pi r square, area of the circle, right? So answer will be pi by 4 into 3 to the 6 यानी कि pi by 24 is your answer. Let your answer be in pi only, or you can put your value of pi and get it into decimal or another fraction forms, whatever you want. That is question number 20. 21, again not a difficult one. A lot contains 144 balls. अच्छा, ball pens. 144 ball pens. आगे क्या लिखा है? Of which 20 are defective, यानी कि 20 ball pens defective हैं and others are good.
सो 144 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर लो, 4 to 124 आर गुड. गुड और आई कैन ऑल्सो से नॉट डिफेक्टिव, वन एंड द सेम थिंग. अब क्या है, द शॉपकीपर the shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy? Obviously अगर कोई बंदा बाय करेगा तो वो गुड ही करेगा, अगर डिफेक्टिव होगा तो वो रिटर्न कर देगा. सो आंसर विल बी 124 डिवाइडेड बाय 144, जिसको आप सिंप्लीफाई करके 31/36 लिख सकते हो. सेकेंड, दैट शी विल नॉट बाय. नॉट बाय तो वो तब करेगी जब वो डिफेक्टिव होगा, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. सो हियर द आंसर इज 5/36. दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. Now, question number 22 is a important question and I will tell you how to draw the table also. रेफर नहीं करना है. आपको क्या किया है उसने, बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस. ये ओके, सो लेट मी शो यू कि हाउ यू विल मेक की सैम्पल स्पेस कैसे बनाओगे. 1 के साथ पहली डाइस में 1 आया, दूसरी बार 1 आया, फिर 1 के साथ 2 आया, फिर 1 को फिक्स करके रखना है बेसिकली, और उसके साथ सारे 6 आउटकम्स. 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 एंड 1 के साथ 6. सिमिलरली 2 के साथ 1 एंड सो ऑन टिल 2 के साथ 6. ऐसे ही 3 के साथ 1 सो ऑन टिल 3 के साथ 6. ऐसे ही 4 के साथ 1, 5 के साथ 1 एंड 6 के साथ 1 टिल 6 के साथ 6, ये 5 के साथ 6 और ये 4 के साथ 6. तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए, पहली प्लेस के लिए 6, ये मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ, दूसरे प्लेस के लिए भी 6, तो 36 आउटकम्स हमारे टोटल हो गए. नाउ क्या बोल रहा है कि आपको ये टेबल फिल करना है. सो सम ऑन द डाइसेस इज 2, तो 2 चेक करो, सिर्फ 2 जो है वो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, राइट, सिर्फ 1 + 1 2 होता है, दैट्स इट. सो इट इज़ 1/36. अब 3 चेक करो कहाँ आ रहा है, 3 आ रहा है इसमें और इसमें. 1 + 2 3, 2 + 1 3, सो दिस विल बी 2/36. सिमिलरली 4 चेक करोगे तो कहाँ आएगा, 1 + 3 इज़ 4, इस लाइन में भी आएगा. 2, 2 is 4 and 3, 1 is also 4. So answer is 3/36. ऐसे ही ये आएगा 4/36, राइट. ऐसे ही 6 आएगा, 6 ऐसे ही 6 जो है वो क्या आएगा, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36. चेक करिए, 5 विल बी 6 विल बी 6/36, राइट. 6 कैसे कैसे आएगा वो चेक कर लीजिए, यहाँ पे 6, फिर 2 के साथ 4 आएगा, वो भी 6 आएगा, 2 के साथ 4 भी 6 बनाएगा, फिर 3 के साथ 3 भी 6 बनाएगा, फिर 4 के साथ 2 भी 6 बनाएगा एंड 5 के साथ 1 भी 6 बनाएगा. तो 1 2 3 4 5, राइट. सिमिलरली 7 काउंट करोगे तो 1, 6 7, सो 2, 5 7, फिर ऐसे ही 3, 5 7, सॉरी 3, 4, आई एम सॉरी 3, 4 7, फिर 4, 3 7, फिर 5 के साथ 2 7 एंड 6 के बाद 1, यानी कि 6/36. फिर 8 आप चेक करोगे तो 8 अगेन कम होना शुरू हो जाएगा, 5/36. ऐसे ही 9 जो है वो आएगा 4/36, दिस विल बी 3/36, दिस विल बी 2/36 एंड दिस विल बी 1/36. सो यू कैन सी द पैटर्न कि वो 6/36 तक इंक्रीज हुआ, उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गया. दैट इज़ हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन नंबर 22. आगे चेक करते हैं कि वो क्या कह रहा है. ओ लेट मी जस्ट फिल द टेबल. आगे क्या है, अ स्टूडेंट अग्रीज दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 11 एंड 12. चेक कर लो, सम 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, टिल 12 वो कितना भी आ सकता है.
Therefore, each of them will have the probability 1 by 11. Do you agree with this statement? Check करो क्या सबकी probability 1 by 11 आई है? No, probability is not 1 by 11. Why? Because they are not equally likely events. You can see that events are not equally likely. हर केस में favorable outcomes जो हैं वो change हो रही हैं. So that is why answer for the second part is no. And justification हमने दे दिया, since the probabilities are different, so they are not equally likely events. All right. Question number 23. Again, a easy one. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. एक 1 rupee coin को हमने 3 टाइम टॉस किया है, तो क्या आएगा चेक करते हैं. हेड पहली बार आ सकता है, फिर हेड के साथ दोनों टेल आ सकती हैं, हेड के साथ दोनों हेड आ सकते हैं, फिर हेड के साथ टेल हेड, और इसमें जो हेड है इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, हेड हेड टेल. राइट. अब आगे देखते हैं. टेल के साथ दोनों टेल्स आ सकती हैं, टेल के साथ दोनों हेड आ सकते हैं, टेल के साथ एक हेड एक टेल आ सकती है. अगेन हेड और टेल की पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है. सो चेक करिए कितनी पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए थे. 3 बार फेंका है तो पहली बार के लिए 2, दूसरी बार के लिए 2 एंड तीसरी बार के लिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. चेक करो 8 आया है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आपको पता चल जाएगा आपने कुछ मिस आउट नहीं किया है. आगे क्या है. Hanif wins if all the tosses of the result are same. So probability of Hanif's winning क्या है. अगर मैं E मान लूँ, हनीफ विन्स, और वो कब विन करता है, जब जब तीनों बार सेम पॉसिबिलिटीज आई हैं. यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2 by 8. यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1 by 4. एंड नॉट विनिंग मतलब हनीफ विल लूज द गेम, यानी कि नॉट विन 1 minus 1 by 4. यानी कि आंसर फाइनल आंसर इज 3 by 4, क्योंकि वो विन नहीं करेगा. राइट. दैट इज हाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 23. अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस. ये तो मैं ऑलरेडी आपको दिखाई चुकी हूँ. अगर हम अंडू करें तो हमें वो ऑल राइट वो पिछले स्लाइड नहीं मिलेगी, बट नो प्रॉब्लम. 5 will not come up either times. A dice is thrown twice. तो ये अगेन आपको पता है सैम्पल स्पेस 36 बनेगा. 1 के साथ 1 से लेकर 1 के साथ 6, ऐसे ही 2 के साथ 1 से लेकर 2 के साथ 6, ऐसे ही 3 के साथ 1 से लेकर 3 के साथ 6, 3 के साथ 6, 4 के साथ 1 से लेकर 4 के साथ 6, एंड 5 के साथ 1 से लेकर 5 के साथ 6, एंड 6 के साथ 1 से लेकर 6 के साथ 6. यानी कि अगेन 36. P of E पहला पार्ट. 5 will not come either of the times. मतलब ये पूरी 5 वाली लाइन भूल जाओ और इसमें एक 5 आएगा. 1 मतलब 6 7 8 9 10 11. सो टोटल कितने हैं 11 आउटकम्स हैं जिसमें 5 आता है. अपॉन टोटल हमें पता ही है 36. सो आंसर इज 11 by 36. सेकेंड पार्ट P of E. 5 कम्स एटलीस्ट वंस. एटलीस्ट वन की हिंदी करते हैं मिनिमम एक बार. 5 आना ज़रूरी है. यानी कि 5 एक बार भी आ सकता है एंड 5 2 बार भी आ सकता है. तो यानी कि ये हो गया 5 एक बार आना, और इसमें एक और था 5 वो 5 2 बार आना. मतलब ये 6 पूरे यूज़ हो जाएंगे. और 1 के साथ भी 5 है, फिर 2 के साथ भी एक 5 आएगा, और फिर 3 के साथ भी 5 आएगा. यानी कि टोटल कितने हो गए 11 by 36. अच्छा, 5 will not come either of the times. not come में 36 minus 11 करोगे ना बेटा, क्योंकि not हमने तो ये काउंट किया था कि 5 कितनी बार एक बार आता है. एटलीस्ट इट कम्स 1 टाइम. राइट. आइदर टाइम नहीं आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री. तो 36 minus 11. राइट. सो दिस इज 5, 3 में से 1 गया 2, 25 by 36 ये हो गया, और 11 by 36 ये हो गया. एंड आपका ये चेक भी हो जाएगा कि आपने आंसर करेक्ट निकाला है. कैसे
P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार, अगर मैं इसे E बार ले लूँ तो ये दोनों 1 आने चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। तो 25/36 चेक करो, 25/36 प्लस 11/36 इक्वल्स टू 36/36, दैट इज़ 1। तो इसी से मुझे पता चला कि मैंने पहले वाला जो पार्ट था ना वो उसमें कुछ गलत लिख दिया था क्योंकि मेरा दोनों को ऐड करके 1 नहीं आ रहा था। दैट इज़ हाउ आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक। सो अगर आप भी कभी गलती करते हो तो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज योर मिस्टेक, ओके। Obviously there has to be time. Last question of the exercise, and again a very easy one. 25th. Which of the following arguments are correct and which are not? Give reasons. If two coins are tossed simultaneously, दो coins को हमने toss किया है तो check करो sample space क्या बनेगी। पहले में head, फिर head tail, फिर पहले में tail, दूसरे में भी tail, या tail के साथ head, 4 ही sample points बनेंगे। If two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes. Check करो क्या 3 possible outcomes हैं? 2 heads, 2 tails and one each. है तो यही 2 heads, 2 tails and 1 each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. Check करो क्या P of both head, probability of getting both head 1/3 है? No, it is 1/4. Probability of getting both tails क्या है? वो भी 1/4 है. But probability of getting one head, one tail, right? One head, one tail कितनी है? This is 2/4. So that is 1/2. Right, children? So check. Is this correct? No, it is incorrect statement क्योंकि वो equally likely outcomes नहीं है। अगर वो equally likely होते तो हम बोलते कि 1/3 1/3 1/3 आ रहा है, लेकिन order of head and tail matters. Head tail अलग event है, tail head अलग event है, right? That is the specification for the first part. Second part, a dice is thrown, there are 2 possible outcomes. एक डाइस को थ्रो किया, उसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स है। चेक करते हैं कौन कौन से, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। सो बेसिकली हमें तो 6 पता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, बट येस दे इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ये जो नंबर्स हैं ये ऑड हो गए और ये जो नंबर्स हैं ये इवन हो गए। तो ओके, वी कैन से दैट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर, चेक करो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड कितने हैं, 3/6, यानी कि कितना आया, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स भी कितने हैं, 2 4 एंड 6, वो भी 3/6, 1/2। सो येस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज बोथ द इवेंट्स हियर आर इक्वली लाइकली। जितने ऑड नंबर्स हैं उतने ही इवन नंबर्स हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। that is what is all about exercise 15.1 जो कि मैंने आपको अभी कराई है। तो आपको अगर कोई भी डाउट है प्रोबेबिलिटी की इस एक्सरसाइज में, काइंडली टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से हॉट्स क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है ऑप्शनल एक्सरसाइज के। दैट हालांकि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, बट फिर भी ईजी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ वाई वी विल डू इट। ओके चिल्ड्रन, all right, all the best.